مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف ہم نے کبھی دھیان بھی نہیں دیا، کیونکہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہم دعا نہیں کر پاتے، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں لوگ بھی برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کرواہٹ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور کوئی چیز دیمک کی طرح ہمیں اندر ہی اندر کھاتی چلی جاتی ہے، اور روحانی طور پر بھی ہم کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے معاف نہ کرنا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہمارے گناہ بھی قائم رہتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ متی کی انجیل 6 باب 14 اور 15 آیت میں اس میں خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہیں تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر تم، یہاں شرط بتائی گئی ہے، ہر شرط کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے اور ہر شرط کے ساتھ ایک کانسیکوینسز بھی ہے، اور جب کہا گیا ہے کہ اگر تم، تو اس کے ساتھ شرط ہے، اور کن کو کہا گیا ہے؟ پہاڑی واز میں یسوع مسیح شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن آج یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ دعا کی قبولیت کے لیے اور دعا کرنے کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم بھی معاف کیے جائیں گے؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ جس کو معاف کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم خود ہیں۔ ہمیں خود کو معاف کرنا ہے، اپنی ذات کو، اپنے انر سیلف میں۔ ہم سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ماضی میں ہم سے ہی کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں۔ ایک احساس جرم ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے خود کو معاف نہیں کر پاتے، یا پھر ہماری وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ، بزنس میں لاس، کسی بھی طرح کی کوئی وجوہات ہماری وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو ہم پوری زندگی اپنے ہی آپ کو اس بات کے لیے بھی کوستے رہتے ہیں کہ اگر کاش کہ میں ایسا نہ کرتا تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اور ہم اپنے اس دنیا میں آنے کے لیے بھی اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کہ ایسا واقعی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارے اندر ایسی بہت سی باتیں جنم لینا شروع کر دیتی ہے، اور پھر احساس جرم ایک ڈور بن جاتا ہے، ایک دروازہ بن جاتا ہے اینمی کے لیے، دشمن کے لیے، جہاں سے وہ پھر انٹر ہوتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے آپ میں، اپنی ذات میں ہی ایک سیلف پیٹی کی حالت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ دنیا سے دور، تنہائی میں ہم دعا نہیں کر پاتے، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ میں خدا کے قریب بھی جا سکوں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ اور جب بھی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دم سے پھر وہ بات ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ تو کون ہوتا ہے کہ وہاں جا سکے، تو کیسے خدا کی عبادت کر سکے، تو نے تو ایسا کیا تھا، تیری وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جب ہمارے دل میں ایسی باتیں ہیں کہ تم ایسے ہو، تم نے یہ کیا، تو ابلیس ہے الزام لگانے والا۔ وہ ہماری ذات پہ الزام لگاتا ہے کہ تم نے یہ کیا۔ وہ الزام لگانے، اس کے نام کا مطلب ہی الزام لگانے والا، جبکہ خداوند ہماری بدی کو بھی یاد نہیں رکھتا۔ اور اگر ہم اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، کہ خدا تو پاک ہے، میں اس لائق نہیں، تو یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے رومیو 5 باب میں اس کی 8ویں آیت میں کہ خداوند کی محبت، یسوع مسیح کی محبت کی خوبی ہم پہ یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے
तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ, बेदीनों की खातिर। और जो मर गया, जिसे सलीब पर जान दी, वो खुद पाक था। एक पाक हस्ती बेदीनों की खातिर सलीब पर जान दे रही है। अगर उसकी मोहब्बत इस कदर बड़ी है, तो क्या हम अपने जुर्म को इतना बड़ा कर रहे हैं कि उसकी मोहब्बत के आगे भी, कि उसकी मोहब्बत कुछ नहीं और हमारा जुर्म ज्यादा बड़ा है? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत के आगे हमारा गुनाह एक जर्रे की मानिद है। तो अगर हम गुनाहगार होने के बावजूद भी वो हमसे मोहब्बत करता है, तो आज भी उसकी मोहब्बत कायम है, आज भी उसकी मोहब्बत में कोई तब्दीली नहीं। और अपने आप को उसके सामने पेश करेंगे, इकरार करेंगे, तो वो आपको माफ करेगा। इसलिए अपने आप को इस बंधन से रिहाई दे, आज़ाद करें, अपने माजी में ना जिंदगी गुजारें, आगे बढ़े, कामयाबी की तरफ बढ़े, क्योंकि जिंदगी की राह यही है और वो यीशु है। वो आपको आज भी माफ करने की कुदरत रखता है। दूसरा पॉइंट जिसको हम माफ नहीं कर पाते, और वो जब हम इसकी बात करेंगे तो एकदम सवाल पैदा होगा कि क्या वाकई में, और वो दूसरा ये है कि हम खुदा को माफ नहीं कर पाते। हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे हमारे साथ वाकयात हो जाते हैं, हम अक्सर खुदा को माफ नहीं कर पाते। और उसकी वजह ये हो सकती है कि जब हमारी जिंदगी में हम मुसलसल किसी खास मकसद के लिए दुआ करते हैं और हमें उस दुआ का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो हम खुदा को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम मुसलसल किसी ऐसे शख्स के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने अजीज के लिए दुआ कर रहे हो जो बीमारी की हालत में है और उसकी डेथ हो जाए, और फिर भी हम खुदा को कोसते हैं कि तूने मुझे जवाब नहीं दिया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू मुझसे प्यार नहीं करता। हम खुदा को माफ नहीं करते, हम खुदा से नाराज हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जब उसने मेरी दुआ नहीं सुनी तो मैं अब खुदा से नाराज हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और एक ये क्यों, इसी बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम खुदा को नहीं माफ करते। हमारे अंदर उसकी मोहब्बत से ज्यादा उसके लिए करवाहट और उसके लिए और ज्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। हम फिर दुआ नहीं कर पाते, और बाजू का ये दुख भी, ये गुनाह भी हमें खुदा के करीब जाने से रोकता है। हम इस बंदिश में जकड़े जाते हैं और इसमें और गहरे होते चले जाते हैं, और खुदा की मोहब्बत को उस तौर पर फिर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिस कदर वो पाक है और जिस कदर उसकी मोहब्बत लासानी है। तो आज हम किधर खड़े हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? आज क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हैं? याद रखिए कि अगर वो मोहब्बत का खुदा है तो वो सॉवरन भी है, वो कादिर मुतलक भी है, और उसमें भी हमारी भलाई है। हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारी मर्जी है खुदा की भी वो मर्जी बन जाए, कि जो हम चाह रहे हैं खुदा भी वैसा करना शुरू कर दे। क्या हम खुदा को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या हम खुदा को अपने तरीके के मुताबिक चलाना चाहते हैं? याद रखिए कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई ही पैदा करती है। तो अगर खुदावन ने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिससे वक्ती तौर पर हमें बुरा लगा, हमें नुकसान हुआ, कोई चीज हमसे जुदा हो गई, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं कि खुदा कहते इसको छोड़ दो, हमें छोड़ना पड़ता है। बाज़-औक़ात हम उसके मुताबिक नहीं चल पाते, तो भी ज़रूरत है कि हम उस पर आमीन बोलें और कहें कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और अपने दिल को साफ करें। शायद आप में से भी कोई ऐसा शख्स हो जो इसमें से गुजर रहा हो, शायद उसने खुद को माफ ना किया, शायद उसने अभी तक खुदा को माफ ना किया, तो आज माफी मांगने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो याद रखिए कि जो इब्लीस है वो चोर है, उसके बारे में लिखे कि वो चोर है, और वो हमारे इनर सेल्फ में, हमारे अंदर बातन में जो एक इत्मीनान है, जो एक खुशी है, वो इब्लीस छीन लेता है। हम जिस्मानी तौर पर भी कमजोर हो जाते हैं, हम रूहानी तौर पर भी कमजोर हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को।
यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। उसका काम हमें हलाकत में लेकर जाना नहीं, बल्कि उसका काम तो हमें जिंदगी देना है। चोर आता है, इब्लीस आता है हमारे अंदर से उसकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को चुराने के लिए। इब्लीस आता है जो हमारे अंदर अब्दी इत्मीनान को चुराने के लिए। इब्लीस आता है जो हमारे अंदर रूहानी नेमतों को चुराने के लिए। यही वजह है कि फिर हम दुआ नहीं कर पाते। हमारे अंदर एक सवाल होता है कि पहले मैं ऐसे था, अब मुझसे ऐसा नहीं होता। वजह क्या है? गौर करने की जरूरत है। कहीं इब्लीस कुछ चुरा तो नहीं रहा आपकी जिंदगी से रूहानी नेमतों को? अगर है तो खुदावन आज भी आपको अपने पास और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसका उसने वादा किया है। और तीसरी बात, जिसको हम माफ नहीं करते वो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग हैं हमारे अपने ही जिनकी बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। बाजू कहता ऐसा होता है कि कोई हमें बेइज्जत कर जाता है, कोई हमें इंसल्ट कर जाता है, बाजूकात कोई हमारा हक छीन लेता है, हमारी पोजीशन छीनने की कोशिश करता है। कोई शख्स ऐसा होता है कि हमें वो नहीं दे रहा होता जिसके हम हकदार होते हैं। और बाजूकात ऐसा भी होता है कि जो हमारे साथ का दोस्त ही हमें धोखा दे देता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे अपने बहन भाई रिश्तेदार हमारे बारे में गलत बातें दूसरों के साथ करते हैं, और वो इब्लीस के लिए दरवाजों को खोलता है ताकि वो रिश्तों में फूट डाले और हमारे जिंदगी में नफरत का बीज बोए और करवाहट बढ़ती ही चली जाए। और याद रखिएगा कि जब ऐसा होगा तो हमारे भी गुनाह कायम रहेंगे। जब हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, जब हम नहीं माफ करेंगे, तो हमारे गुनाह भी कायम रहेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल यीशु मसीह खुद है। क्या वो पाक नहीं था? क्या वो कामिल इंसान नहीं? क्या उसने कभी किसी के साथ बुरा किया? हरगिज नहीं। लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या किया? लोगों ने उसके मुंह पर तमाचे मारे, उस पर थूका, उसको कोड़े लगाए गए। उसकी निस्बत उन्होंने बराबा को पसंद किया और उसको छुड़ाया, उसको सलीब दे दी गई और उस वक्त वो लानती मौत थी। लेकिन उसने क्या किया कि खुदावन अब तू बदला ले, तो इंसाफ कर। नहीं, उसने कहा कि खुदावन इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारी दुआएं कैसी हैं? क्या हम अपनी दुआओं में भी किसी के लिए बुरा सोचते हैं या बरकत मांगते हैं? इसलिए सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मैंने उसे माफ किया, बल्कि दिल से भुला कर उसको गले लगाना और हम उसको कुछ दे कर भी किसी अमली तौर पर इस बात के इजहार कर सकते हैं कि हाँ, मैंने सच्चे दिल से तुझे माफ किया है। क्या आपने माफ किया? क्या आपके अंदर भी तो ऐसी बातें नहीं? क्या आप भी उस शख्स की मानद तो नहीं बनते चले जा रहे जिसने आपके साथ बुरा किया? हमारा काम मसीही होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, हमारा काम ये है, हमें हमेशा मोहब्बत को फैलाना है, हमने हमेशा खुशी को फैलाना है, बरकत देनी है। जो हमारे अंदर है हमने वही देना है दूसरों को। आज हम क्या देते हैं? क्या हम ऐसी हालत में खुदा के करीब जा सकते हैं और उसको ये कह सकते हैं कि खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ? अगर खुदा ने ये कह दिया कि तूने उन लोगों से मोहब्बत नहीं रखी जिसको मैंने दुनिया में भेजा, तो मैं कैसे मान लूं कि तूने मुझसे मोहब्बत भी रखी? तो आज इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। गौर कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और ये याद रखिएगा कि खुदा आज भी हमारे गुनाहों को धोकर उसको पाक करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका खून जिंदा है, उसका बहता लहू जिंदा है। उसके लहू को जिंदगी पर क्लेम करे। थैंक यू सो मच। माफी तो सबके लिए है, मगर माफ किए जाने के बाद और माफ करना भी सबको है। लेकिन माफ किए जाने के बाद किन के साथ मेल मिलाप रखना जरूरी है, ये हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो देखते रहिए आज़ाद।